Okay, good afternoon. Now today we will see another example of state space search, that is missionaries and cannibals problem. Now missionaries means these are known as saints or sadhu in Marathi, and cannibals is nothing but devil, or in Marathi it is called as Rakshas. Now these all three missionaries and three cannibals are on the left side of the river, 6 persons, and one boat is there, and this is our start state. And what is our goal state? All the missionaries and all the cannibals must reach to the right side of the river. Therefore, how to achieve it? First of all, we will see the video, then you will understand. Again, I will explain. Therefore, the missionaries and cannibals problem illustrates the use of state space search for planning under constraints. Three missionaries and three cannibals wish to cross a river using a two-person boat. If at any time the cannibals outnumber the missionaries on either side of the river, they will eat the missionaries. How can a sequence of boat trips be performed that will get everyone to the other side of the river without any missionaries being eaten? Therefore, this is the problem. Again, I will explain. These three missionaries are there. These three cannibals. Cannibals in Marathi it is called as Rakshas. Missionaries means Sadhu or Santa. This is the boat. It is a two-person boat. Now we have to achieve the goal state, means what? All the missionaries and all the cannibals should be on the right side of the river. Now how we have to achieve? See that there should not be these cannibals are going to eat these missionaries. If one cannibal and one missionary will be here on any side of the river, therefore at that time this cannibal is going to eat these missionaries. Therefore, first of all, we'll see this video, then you will understand how they are going to eat.
Okay, this is nothing but solution of the problem. Therefore, first of all, again, we will see this video, then again you will understand how they have explained. सो इस वीडियो में हम देखेंगे मिशनरीज एंड कैनिबल्स प्रॉब्लम। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिशनरीज एंड कैनिबल्स प्रॉब्लम बहुत ही फेमस है और ये प्रॉब्लम बहुत ही पुराना है। ये पजल प्रॉब्लम है, लाइक इसकी गेम्स भी काफी बन चुकी है। मिशनरीज एंड कैनिबल्स, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली कि एक रिवर बैंक है, यानी कि रिवर बैंक के दो साइड है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो रिवर बैंक है और यहाँ पे दो साइड है, एक है लेफ्ट साइड और एक राइट साइड है रिवर का। और यहाँ पे हमारे पास एक बोट है। अब ये बोट में हमें मिशनरीज और कैनिबल्स को ट्रैवल करवाना है, यानी कि लेफ्ट साइड के बैंक पे से राइट साइड के बैंक तक मिशनरीज एंड कैनिबल्स को पहुंचाना है। तो यहाँ पे हमारे पास मिशनरीज होगी और कैनिबल्स। मिशनरीज यानी कि जो इंसान होते हैं वो, कैनिबल्स यानी कि जो इंसान को खा जाते हैं वो। सो मिशनरीज को मैं रिप्रेजेंट करूंगा 3 zeros, यानी कि हमारे पास टोटल 3 मिशनरीज है और कैनिबल्स हमारे पास टोटल 3 है। ओके, सो यहाँ पे अभी इश्यू क्या होता है कि बोट को ड्राइव करना बहुत जरूरी है, यानी कि ड्राइव करने वाला पर्सन, बोट में कोई ना कोई होगा तभी बोट एक बैंक से दूसरी बैंक तक पहुंचेगी। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे इक्वल लेवल में मिशनरीज और कैनिबल्स होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि कैनिबल्स ज्यादा है और ह्यूमंस कम है, यानी कि मिशनरीज कम है, तो कैनिबल्स ह्यूमंस को खा जाएंगे।
ये इस पजल का रूल है। तो हमारा मेन टारगेट क्या है कि ये 3 मिशनरीज और 3 कैनिबल्स को हमें पहुंचाना है सामने के लेवल पे, यही हमारा टारगेट है। तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस तरह से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मिशनरीज एंड कैनिबल्स इस तरह से मैं ड्रॉ करूंगा। नाउ इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ रूल्स है जिसमें मैं बता दूं कि यहाँ पे जो स्टेट स्पेस बनाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट होगा मिशनरीज, नेक्स्ट होगा कैनिबल, और ये होगा 0 या 1 किसी में से भी, यानी कि थर्ड जो होगा वो 0 या 1 होगा। तो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है उसको हम 1 बताएंगे और राइट साइड वाले को 0 बताएंगे। ओके, तो अभी हमारा इनिशियल स्टेट क्या है, तो वो है 3 3 एंड 1, यानी कि हमारे पास टोटल 3 कैनिबल्स है, सॉरी 3 मिशनरीज 3 कैनिबल्स, और हमारी बोट है लेफ्ट साइड पे, यानी कि बोट की जो लोकेशन लेफ्ट और राइट ये डिफाइन करेगी 1 या 0। सो अब हम स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मिशनरीज कम नहीं होती और कैनिबल्स ज्यादा नहीं होते कोई भी बैंक पे। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम एक मिशनरी और एक कैनिबल को नेक्स्ट बैंक पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एरो बताऊंगा और 1 मिशनरी एंड 1 कैनिबल इस तरह से मैं ड्रॉ करूंगा। तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट पे मेरे पास होगा यहाँ पे 2 मिशनरीज होगी और 2 कैनिबल्स होंगे। और ये स्टेट को मैं किस तरह से डिफाइन करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 2 और बोट की पोजीशन हो जाएगी इस तरफ। अब बोट को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, तो बोट की पोजीशन हो जाएगी 0। ओके, सो लेफ्ट साइड हम 1 बताएंगे, राइट साइड पे हम 0 बताएंगे। सो अब यहाँ पे मिशनरीज कितने होगी 1 एंड कैनिबल्स होंगे 1, सॉरी, तो मिशनरीज के लिए 0 एंड कैनिबल्स के लिए 0। नाउ द नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, अब हमें क्या करना है कि नेक्स्ट अभी यहाँ से बोट को ट्रैवल करने के लिए कोई यहाँ पे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम मिशनरी को ले लेंगे। तो हम अब एक मिशनरी यानी कि 1M को वापस ट्रैवल करवाएंगे यहाँ पे। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो हो जाएगा वो होगा 000 एंड 2 क्रॉस, यानी कि कैनिबल्स हमारे पहुंच गए और मिशनरीज अभी यहाँ पे। तो बोट की पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी और let me draw properly. Okay, so now यहाँ पे दो कैनिबल्स है और 3 मिशनरीज है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब 2 मिशनरीज को लेके जाएंगे, 2 कैनिबल्स को लेके जाएंगे। नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि ये प्रॉब्लम को किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कोई बोट ड्राइव करने वाला होना चाहिए। दूसरा ये कि यहाँ पे लेवल कम नहीं होना चाहिए। अगर मिशनरी ज्यादा होगी तो चलेगा, इंसान ज्यादा होंगे तो चलेगा, लेकिन कैनिबल्स ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये बात को ध्यान में रख के हम 1 बाय 1 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 220 किस तरह से आया, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट अब हमारे पास ये स्टेट है। अब ये स्टेट पे क्या प्रॉब्लम आएगी, ओके, ये स्टेट को हम क्या बोलेंगे, पहले तो 3 2 एंड 1। ओके, अब यहाँ से हम आगे किस तरह से बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ पे 2 कैनिबल्स को वापस लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 2 कैनिबल्स और बोट की पोजीशन हो जाएगी वो हम नेक्स्ट स्टेट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे थे 1 कैनिबल और ये एक हमने यहाँ पे ले लिया था। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम यहाँ पे एरो लिख रहे हैं। वन थिंग, मैं इस मेथड को किस तरह से लिख रहा हूँ वो मैं बता दूं। तो फर्स्ट टाइम मैंने एरो यहाँ पे लिखा, उसका रिजल्ट मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया। तो यहाँ पे मैंने एरो लिखा तो इसका रिजल्ट मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया। अब ये जो एरो लिख रहा हूँ उसका रिजल्ट मैं नीचे डिस्प्ले करूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मिशनरीज और बोट की पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी और यहाँ पे 3 कैनिबल्स हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे स्टेट हो जाएगा हमारा लाइक, अब स्टेट किस तरह से होगा, स्टेट हमें यहाँ पे नहीं देखना है। ये जो हम 3 2 1 ये जो लिख रहे हैं वो हम लेफ्ट साइड जो कंडीशन है उस हिसाब से देख रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ नहीं देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ का मुझे देखना है। तो यहाँ पे था 3 2 एंड 1, 3 2 और बोर्ड की पोजीशन 1 थी। अब यहाँ पे है 3 0 एंड बोर्ड की पोजीशन हो जाएगी 0। सो 3 0 एंड 0। ओके, एंड द नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे नेक्स्ट एरो में क्या बनाऊंगा, अब यहाँ से बोट को ड्राइव करने वाला होना चाहिए। तो बोट ड्राइव करने के लिए एक कैनिबल को हम ले लेंगे। तो एक कैनिबल बोट ड्राइव करेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट क्या डिस्प्ले होगा, 3 zeros और यहाँ पे एक कैनिबल आ जाएगा और बोट की पोजीशन हो जाएगी यहाँ पे लाइक दिस। बोट की पोजीशन ये होगी और हमारा नया स्टेट बनेगा 3 1 एंड 1।
और यहाँ पे हमारे पास 2 कैनिबल्स होंगे। नाउ द थिंग इज कि अब यहाँ पे एक कैनिबल जो है, अब यहाँ पे हम 2 मिशनरीज को ले लेंगे। रीजन इज कब हम एक मिशनरी को नहीं लेंगे, 2 मिशनरी को ले लेंगे। अगर ये 2 मिशनरीज को हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं तो 2 और 2 सेम लेवल हो जाएगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो द नेक्स्ट थिंग, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं 2 मिशनरीज को ले लूंगा। सो 2 मिशनरीज, और इसका रिजल्ट जो होगा वो मैं यहाँ डिस्प्ले करूंगा। तो आई विल गेट लाइक दिस। सो मेरा स्टेट स्पेस अब जो होगा वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने एक कैनिबल और एक मिशनरी, और यहाँ पे 2 मिशनरीज और 2 कैनिबल्स है। और यहाँ पे मुझे लिखना होगा लाइक, यहाँ पे है 1 1, एंड यहाँ पे जो पोजीशन होगी वो होगी लाइक दिस, तो पोजीशन है 0। सो दिस, इस तरह से हमने 2 मिशनरीज एंड 2 कैनिबल्स को ट्रांसफर कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से वापस कोई ड्राइव करने वाला होना चाहिए। तो अगेन हर बार ड्राइव करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली आपको कैनिबल को लेना है। कैनिबल को इसलिए लेना है कि अगर मैं यहाँ पे ड्राइव करने के लिए मिशनरी को लेता हूँ तो यहाँ पे लेवल कम हो जाएगा और ये कैनिबल्स ये मिशनरी को खा जाएंगे, लाइक दिस, इस तरह से। सो नाउ यहाँ पे 2 कैनिबल्स 2 मिशनरीज हो गई, एंड यहाँ पे 1 मिशनरी एंड 1 कैनिबल है। हमारी पोजीशन इस तरह से है, मैं ये लेफ्ट साइड पे से लिख रहा हूँ। सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब मैं क्या करूंगा, एक मिशनरी और एक कैनिबल को यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा। सो एक मिशनरी और एक कैनिबल को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, तो 1 मिशनरी एंड 1 कैनिबल। तो रिजल्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा लाइक दिस, और यहाँ पे मिशनरी एंड कैनिबल में हमारे पास दोनों एक रह जाएंगे, और रिजल्ट हो जाएगा 2 2 एंड 1। नाउ वन थिंग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये स्टेट 2 2 1 यहाँ पे भी आया था, 2 2 0 एंड 2 2 1, बट यहाँ पे डिफरेंस ये था कि हमारी बोट यहाँ थी, और यहाँ पे डिफरेंस ये बोट यहाँ पे है। तो हमारे पास इतना हम कह सकते हैं कि हमने एक मिशनरी और एक कैनिबल को सक्सेसफुली शिफ्ट कर दिया दूसरी तरफ। अब हमें यहाँ से दूसरा ले जाना है। सो नाउ अब मैं शिफ्ट करूंगा, ऑब्वियसली 2 मिशनरीज को शिफ्ट करूंगा, बिकॉज अब मेरे पास चांस है। अब मैं 2 मिशनरी को यहाँ पे ले जाऊंगा तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपली मैं यहाँ पे 2 मिशनरीज को शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मेरा स्टेट हो जाएगा लाइक दिस, 0 2, एंड बोट मेरी वो साइड चली जाएगी, तो 0 2 0 इस तरह से हो जाएगा। सो लेट मी सी लाइक दिस, कि अब मेरे पास पोजीशन होगी 0 0 0 एंड क्रॉस, यानी कि मिशनरीज एंड कैनिबल्स हो गए, 3 मिशनरीज और एक कैनिबल होगा। नाउ अब यहाँ पे बोट हमारी पोजीशन यहाँ पे है। अब मुझे ये कैनिबल्स को भी मुझे शिफ्ट करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, एक कैनिबल को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, क्योंकि बोट को कोई ड्राइव करने वाला होना चाहिए, तो हम कैनिबल को ही ऑलवेज ड्राइव कराएंगे। तो 1 कैनिबल यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे से वो चेंज कर देगा, पोजीशन हो जाएगी यहाँ पे मिशनरीज है 0 और 3 और 1। ओके, इट दिस इज राइट नाउ, बिकॉज यहाँ पे 0 मिशनरीज है, 3 कैनिबल्स एंड बोट हमारी फर्स्ट पोजीशन पे है। तो रिजल्ट आएगा 3 कैनिबल्स 0 एंड बोट पोजीशन हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ओके, सो नाउ अब सिंपल है, अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1। अब यहाँ पे एक कैनिबल 2 कैनिबल को लेके हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 3 मिशनरीज है, तो यहाँ पे 2 कैनिबल शिफ्ट हो जाएंगे, और हमें रिजल्ट में नीचे डिस्प्ले करूंगा, एंड पोजीशन हमारी यहाँ पे होगी। तो हमारे पास यहाँ पे एक ही कैनिबल बचेगा, तो हमारे पास रिजल्ट है 0 1 एंड 0। अगेन एक कैनिबल यहाँ पे ट्रैवल करेगा, तो इट विल गेट लाइक दिस, 0 2 एंड 1, और बोट पोजीशन हमारी हो जाएगी यहाँ पे। ओके, अब हमारे पास 2 कैनिबल यहाँ पे, 2 कैनिबल सिंपली बोट यहाँ पे ले जाएगी, तो हमारे पास जो फाइनल स्टेट आएगा, तो फाइनल स्टेट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फाइनल स्टेट हमारे पास होगा लाइक दिस, लेट मी राइट प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे हमारी बोट होगी, ये हमारे मिशनरीज और ये हमारे कैनिबल्स, और हमारा जो स्टेट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, 0 मिशनरीज 0 कैनिबल्स, और बोट पोजीशन हमारी 0 पे है। ओके,
So this was machineries and cannibals problem. हमारा initial target क्या था? 3 3 and 1 यानी initial goal, initial destination source पे हमारे पास 3 3 and 1 था. हमें पहुंचना था 0 0 and 0 पे. Like I mean to say that यहाँ पे तीनों मशीनरी होनी चाहिए, तीनों कैनिबल्स होने चाहिए और बोथ पोजीशन यहाँ पे होनी चाहिए. ये हमारा टारगेट था. अब मिशनरीज एंड कैनिबल्स प्रॉब्लम इस तरह से तो सॉल्व कर दिया हमने, बट इसको हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से लिखना है. तो हमारा जो गोल्स इनिशियल स्टेट ये है, गोल स्टेट हमारा ये है, लेकिन पाथ कॉस्ट हमारा क्या है. तो पाथ कॉस्ट यानी कि हमने बोर्ड को कितनी बार एक जगह से दूसरी जगह पे लिया. तो आई विल काउंट सिंपली 1 2 like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11. लाइक मैंने 11 टाइम्स बोर्ड को लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट किया. तो मेरा जो पाथ कॉस्ट होगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा. आई डोंट हैव स्पेस, तो मैं पाथ कॉस्ट यहाँ पे सिंपली आई कैन राइट हियर path cost equals to 11. ओके, पाथ कॉस्ट 11 है. 11 पाथ्स हम ये फॉलो करेंगे तो हमारा जो कैनिबल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा. अब ये प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन नहीं है, देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस. जैसे वाटर जेट के बहुत सारे सॉल्यूशंस थे, इस तरह से मिशनरीज एंड कैनिबल्स के भी बहुत सारे सॉल्यूशंस है. तो देयर कैन बी एनी ऑफ द सॉल्यूशन, आपको जिस तरह से सॉल्व करना है. बट द टारगेट इज कि यहाँ पे तीनों मिशनरीज और तीनों कैनिबल्स को हमें नेक्स्ट बैंक पे पहुंचाना है. ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है. सो इफ यू आर फेसिंग एनी Okay, this is the missionaries and cannibal problem. Start representation, boat position, originality or final nil side of the river. Number of missionaries and cannibals on the original side of the river. Start T33. Goal is nil 0 0. Now already this method is explained. Missionaries and cannibals search graph. Missionaries on left 3, cannibals on left 3. Then whatever they have said, 0 indicates right position, 1 indicates left position. You can see this video, then you will understand that graph. So you want to be a software engineer at Google? Go to algoexpert.io. Pick a question, read the prompt, write some code, run your code, write some more code, run your
Okay, this is nothing but video. Therefore, now here missionaries on left, cannibals on left, both position. Now you can see here one missionary, one cannibal, and here 2C means two cannibals. Now what they have done? Again 320. Therefore, from this 320, they have here three missionaries, one cannibal, and one position is one. Now this the possible operators that are applied to this in this problem are two missionaries, zero cannibal, zero missionaries, two cannibal, one missionary, one cannibal, one missionary, zero cannibal, zero missionary, one cannibal. Here M is missionary and C is cannibal. Digit before these characters indicates number of missionaries and cannibals possible at any point in time. These operators can be used in both the situations. That is, if boat is on the left bank, then we write operator, that is arrow like this, that is indicating towards right. And if the boat is on the right bank of the river, then we write operator, that is arrow indicating left side, that is arrow going towards left side. For the sake of simplicity, let us represent L for left, R for right, where L is equal to 3M, 3C, 1B, and R is equal to 0M, 0C, 0B. Here B represents boat, boat with 0, boat with 1 or 0, indicating the presence or absence of boat. Now start state. Start state is what? 3M, 3C, 1B, or simply 331, 000. Goal state means here what is there? Three missionaries, three cannibals, one boat is there towards left side, and towards right side now what is there? Zero missionaries, zero cannibals, and zero boat, or simply 331, 000. Goal state is what? On the left side, zero missionaries, zero cannibals, and zero boat, and on the right side, three missionaries, three cannibals, and one boat, or simply 000,331. Therefore, we will see how to find out. Now, this is the solution path 1. Now, at the first ride, what we will do? We will take one missionary and one cannibal from left to right. Then, from right to left, this arrow indicates left to right. This arrow indicates right to left. Therefore, from right to left, now what will happen? We have put one cannibal here and we have taken one missionary here. Therefore, that one missionary will drive the boat. It will come here. Now, here we will take two cannibals and zero missionaries. Therefore, two cannibals will drive the boat. That boat will come towards right side. Then one cannibal will be dropped. Then one cannibal again drive the boat. It will come towards the left side. Now we will take two missionaries. Two missionaries will come on this side. Therefore, again, one missionary will come through the boat and one cannibal will be there. Therefore, again, from this left to right, two missionaries and zero cannibal, two missionaries will come and they will go towards right. Now again, from this, from right to left, zero missionary and one cannibal will come here towards left side. It will pick another cannibal from left side of the river. Then two cannibals will be there in the boat. It will go towards right. Then again from right to left, one cannibal will come. It will take
another cannibal, and there will be two cannibals will be there. They will reach towards right side. Therefore, towards right side, three cannibals and three missionaries will be there. Now solution path 2. Now here 331 will be there. 33 L. Here 330. Now what will be there? We'll take one missionary and one cannibal from left to right. Then from we'll put one cannibal towards right side of the river, and this one missionary will drive the boat. One missionary will come here. Now what we'll do? We'll put one missionary towards left side, and we'll take one cannibal, two cannibals, because here two cannibals are remaining. Therefore, two cannibals will take towards left to right. We'll drop one cannibal. Again, that cannibal will drive the boat. It will come. Now again, this instead of cannibal, we'll drop this cannibal towards left side. We'll take two missionaries. Two missionaries will come from left to right. Then again, one missionary and one cannibal will come from right to left. Then again, two missionaries and zero cannibal will go from left to right. Therefore, again, right to left, zero missionary and one cannibal. Again, from left to right, zero missionary and two cannibals. Again, from right to left, we'll take one missionary and zero cannibal, and again from left to right, one missionary, one cannibal. Therefore, there are different solution paths are there. Here, two solution paths are given. Now, next is exhaustive search techniques, that is control strategies. Control strategy is one of the most important components of problem solving that describes the order of application of the rules to the current state. Control strategy should be such that it causes motion towards a solution. The second requirement of control strategy is that it should explore the solution space in a systematic manner. If we select a control strategy where we select a rule randomly from the applicable rules, then definitely it causes motion and eventually will lead to a solution. But there is high probability that we arrive to some same state several times, as it may be a non-systematic control strategy. In-depth strategy, we follow a single branch of the tree until it yields a solution or some pre-specified depth has reached, and then go back to immediate previous node and explore other branches using depth first strategy. In breadth first strategy or in breadth first search, a search space tree is generated level wise until we find a solution or some specified depth is reached. To solve some real world problems, effective and systematic control strategies must be used. Therefore, control strategies, the word search refers to the search for a solution in a problem space. Search proceeds with different types of search control strategies. A strategy is defined by picking the order in which the nodes expand. The search strategies are evaluated along the following dimensions: completeness, time complexity, space complexity, optimality. The search related terms are first explained, and then the search algorithms and control strategies are illustrated next. Search related terms: algorithms, performance, and complexity. Ideally, we want a common measure so that we can compare approaches in order to select the most appropriate algorithm for a given situation. Performance of an algorithm depends on internal and external factors. Internal factors or external factors: time required to run, size of input to the algorithm, space required to run, speed of the computer, quality of the compiler. Complexity is a measure of the performance of an algorithm. Complexity measures the internal factors, usually in time than space. Then computational complexity. It is the measure of resources in terms of time and space. If A is an algorithm that solves a decision problem of
then runtime of A is the number of steps taken on the input of length n. Time complexity T of n of a decision problem F is the runtime of the best algorithm A for F. Space complexity S of n of a decision problem F is the amount of memory used by the best algorithm A for F. Now, exhaustive searches. First technique is depth first technique. This is an exhaustive search technique to an assigned depth. Here, the search systematically proceeds to some depth D before another path is considered. If the maximum depth of search tree is 3, then if this limit is reached and if the solution has not been found, then the search backtracks to the previous level and explores any remaining alternatives at this level and so on. It is this systematic backtracking procedure that guarantees that it will systematically and exhaustively examine all the possibilities. Depth first search, a search strategy that extends the current path as far as possible before backtracking to the last choice point and trying the next alternative path is called depth first search. We are going to see this video in next lecture, then you will understand. Also, I am going to explain this again. This strategy does not guarantee that the optimal solution has been found. In this strategy, search reaches a satisfactory solution more rapidly than breadth first, an advantage when the search space is large. Algorithm. Depth first search applies operators to each newly generated state, trying to drive directly toward the goal. If the starting state is a goal state, quit and return success. Otherwise, do the following until success or failure is signaled. First, generate a successor E to the starting state. If there are no more successors, then signal failure. Second, call depth first search with E as the starting state. Third, if success is returned, signal success. Otherwise, continue in the loop. Advantages: low storage requirement, linear with tree depth, easily programmed function called stack does most of the work of maintaining state of the search. Disadvantages: may find a suboptimal solution, one that is deeper or more costly than the best solution. Incomplete without both boundary, not find solution even one exists. Therefore, we'll see this video, we'll see how much time it takes. Other Hello friends. okay, we'll see this video. डिस्कस करने जा रहे हैं DFS दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस वीडियो में आपको DFS से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे कीवर्ड्स पता लग जाएंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनटीए नेट या फिर अगर आप कॉलेज या अपने यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है इसको हम बोलते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक। जैसे कि बीएफएस की हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप एक बार बीएफएस भी चेक कर सकते हैं। ब्रेडथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च दोनों ही किसके अंदर आते हैं? इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक। अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक का फंडा क्या है यहाँ पे कि हमारे पास प्रेजेंट नॉलेज होती है, पूरी डोमेन लेवल की नॉलेज नहीं होती। मतलब हमारे पास ये पता है कि ए हमें कहाँ पे लेके जा रहा है, या हम अगर एक सिंपल सा पॉइंट बताएं तो ए से लेट्स से मेरे को बी पे जाना है या ए से मेरे को सी पे जाना है, तो यानी मेरे को ए से बी पे जाने की कॉस्ट या मेरे को ए सी पे लेके जाएगा कितनी कॉस्ट में ये पता है, लेकिन बी मुझे आगे गोल स्टेट तक लेके जा रहा है, क्या उसकी एस्टिमेशन है, क्या उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, ये हमें नहीं पता। मतलब ये ब्रूट फोर्स मेथड की तरह काम करता है, ब्लाइंड सर्च की तरह काम करता है और ये प्रेजेंट नॉलेज के साथ ही आगे बढ़ता है। तो इसीलिए बीएफएस हो चाहे डीएफएस दोनों ही अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक के अंदर आते हैं। लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, स्टैक। ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है? स्टैक।
जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट बेस्ड है, लेकिन जो बीएफएस था वो यूज करता है क्यू, जिसको हम बोलते हैं फीफो बेस्ड। तो यहाँ पे अगर स्टैक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मैंने ऑलरेडी ट्री बनाया हुआ है, आप चाहे ट्री भी ले सकते हैं, ग्राफ भी ले सकते हैं। अगर हम इस ट्री की बात करें तो स्टार्टिंग नोड है हमारे पास ए, तो ए से अगर हम स्टार्ट करें तो लेट्स से सबसे पहले मैं क्या सर्च किया या क्या मैंने यहाँ पे ट्रेवल किया ए को, तो ए से आगे मैं क्या जहाँ पे किस किस जगह पे जा सकता हूँ, बी पे या फिर सी पे जा सकता हूँ। तो इसको हम कैसे डालते हैं, इसको हम रखते हैं स्टैक के अंदर। तो चाहे आप पहले बी डाल दो फिर सी डाल दो, या पहले सी डाल दो या फिर बी डाल दो, ये आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो। मतलब जो सीक्वेंस है डीएफएस का वो मल्टीपल बन सकता है, लेकिन जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपका सेम ही रहेगा। मतलब ये कौन सा लॉजिक पे काम करता है, डीपेस्ट नोड पे, मतलब ये सिर्फ डीप पे जाता है, और जब डीप पे बिल्कुल लास्ट पे पहुंच गया, बिल्कुल लीफ पे पहुंच गया, फिर ये उसके बाद बैक ट्रैक करता है। लेकिन जो बीएफएस था, बीएफएस शैलो नोड पे काम करता है, मतलब एक एक करके सारे लेवल बाय लेवल आगे बढ़ता है। लेकिन ये लेवल बाय लेवल फॉलो नहीं करेगा, ये पहले डीप में जाएगा, जब डीप में जाने के बाद इसको गोल सेट नहीं मिली, तब ये बैक ट्रैक करके फिर दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें ए से, या तो मैं बी और सी को पहले डाल सकता हूँ, या इस तरीके से आप कोई भी फॉलो कर लो। लेट्स से अगर मैं ये वाला फॉलो करता हूँ तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो कौन सा लास्ट इन गया, सी, मतलब सी हमने लास्ट में पुश किया, तो सी को ही हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास मतलब ए के बाद मैं किधर जा रहा हूँ, सी पे जा रहा हूँ, तो यानी मैं इस डायरेक्शन में गया। अब सी के बाद मैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे सी से मैं एफ और जी पे जा सकता हूँ। तो अगेन मैंने क्या किया, यहाँ पे बी तो ऑलरेडी हमारे पास है, और बी के बाद हमने क्या डाल दिया, एफ डाल दिया और जी डाल दिया। आप बस एक सीक्वेंस को ही फॉलो करो, इसको उल्टा करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको पता लग जाएगा कि एक डायरेक्शन में चलता जाएगा। अब देखो जी हमने लास्ट में किया, इसी को ही हम पहले बार निकालेंगे। तो नेक्स्ट नोड कौन सी हमने गया, जी पे हमने गई। देखो यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन में ही चलता हुआ, मतलब ये बिल्कुल डीप में जाता जाएगा। अगर इसके बाद कोई और नोड हुई तो ये और नोड की तरफ चलता जाएगा, एक पूरी डायरेक्शन में चलता जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लेट्स से कि जी के बाद कोई और नोड नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, अब बैक ट्रैक करेगा। बैक ट्रैक का मतलब है ये उसके पेरेंट पे जाएगा, और ये पेरेंट कौन सा है, सी, जो कि ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो इसके बाद ये निकालेगा किसको, एफ को। मतलब अब हम किसको ट्रेवल करेंगे, यहाँ पे एफ को ट्रेवल करेंगे। तो एफ से आगे हमारे पास कोई और नहीं है, अगर होता तो ये एफ से नीचे जाता डीप में, लेकिन अगर नहीं है तो अगेन ये वापस किस पे जाएगा, ए पे जाएगा। और ए क्या है, यहाँ पे पेरेंट है, तो ए ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे बी, तो ये किसकी तरफ जाएगा, बी की तरफ। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट नोड कौन सा ट्रेवल किया, बी। और जैसे ही हमने बी को ट्रेवल किया या बी को हमने कवर किया, तो इससे आगे कौन सी हमारे पास, डी और ई। तो डी और ई को हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया स्टैक के अंदर। अब ई को हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो नेक्स्ट नोड कौन सी हो जाएगी, ई, और फिर फाइनली हमारे पास कौन सी हो जाएगी, डी। तो ये वन ऑफ द डीएफएस सीक्वेंस पॉसिबल है, आप किसी भी तरीके से इसको फॉलो कर सकते हो। तो अगर हमने कोई भी गोल स्टेट को सर्च करना है, लेट्स से अगर हमने जी को सर्च करना है, तो ये एक डायरेक्शन में मूव करेगा, और जैसे ही इसको गोल स्टेट मिल गई, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी उसका पेरेंट हुआ, तो जी का पेरेंट कौन है, सी, और सी का पेरेंट कौन है, ए। इस तरीके से ये पाथ जो है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है वो यही है कि ये डीपेस्ट नोड की तरफ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, बीएफएस क्या होता है, कंप्लीट, और ये है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब है ऐसा पॉसिबल है कि ये मेरे को सोल्यूशन ही ना दे। यस, डीएफएस के अंदर हमारे पास ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि वो एक एक करके सारे लेवल्स को कवर करता है। लेकिन डीएफएस के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि हमें रिजल्ट ना दे, या तो आपके अगर ग्राफ के अंदर साइकिल्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर आपके ग्राफ के अंदर साइकिल है, तो हो सकता है वो साइकिल के अंदर परमानेंट लूप के अंदर फंस जाए। और अगर हमारे पास सर्च स्पेस इनफाइनाइट है, सर्च स्पेस इनफाइनाइट का मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ लेवल्स नीचे नीचे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये करेगा क्या, एक डायरेक्शन में मूव करता रहेगा और नीचे तक जाता रहेगा, और हो सकता है हमारी गोल स्टेट किसी और डायरेक्शन में पड़ी हो। तो यानी एक तरफ ही ये मूव करता रहेगा, तो हो सकता है कि ये इनफाइनाइट मतलब मूव करता जाए और मेरे को आउटपुट ना दे। तो हमेशा याद रखें कि डीएफएस जो है वो इनकम्प्लीट है। मतलब इनकम्प्लीट का क्या होता है कि हो सकता है कि सोल्यूशन मेरा ना आए, और डीएफएस जो एल्गोरिथम है वो लूप के अंदर फंस जाए। लेकिन होगा ये तभी पॉसिबल अगर हमारे पास सर्च स्पेस जो है वो इनफाइनाइट हो, मतलब एलिमेंट जो सर्च करने हैं वो इनफाइनाइट हो, तो ये लूप में फंस सकता है। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट, नॉन ऑप्टिमल।
नॉन ऑप्टिमल का फंडा यहाँ पे क्या है कि जो BFS है वो हमेशा ऑप्टिमल रिजल्ट ही देगा। अगर हमारे पास सारी कॉस्ट जो है वो सिमिलर है, सिर्फ उसी की बात करें, अगर कॉस्ट हमारी अलग अलग है हर एक नोड की, हर एक एजेस की, तो हम BFS को भी यूज नहीं करते, देन वी यूज द ह्यूरिस्टिक मेथड लाइक A स्टार। लेकिन अगर हम बात करें DFS की, तो DFS जरूरी नहीं है कि हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन दे। हो सकता है कि मेरे को जो सोल्यूशन दे रहा है उसकी कॉस्ट ज्यादा है और एक और सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है जिसकी कॉस्ट क्या है, कम। तो ये भी पॉसिबिलिटी है दैट नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन कैन बी गिवन बाय द DFS। देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लास्ट पॉइंट यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जल्दी हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ V प्लस E, दैट इज नंबर ऑफ नोड्स प्लस नंबर ऑफ एजेस, जो कि हम BFS के केस में भी लिखते हैं, क्योंकि ट्री में जितने नंबर ऑफ नोड्स है, नंबर ऑफ एजेस है, उन सारों को आपको ट्रैवर्स कर ही रहे हो, सारों को आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जल्दी हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ B की पावर D, वेयर B इज द ब्रांचिंग फैक्टर। ब्रांचिंग फैक्टर मतलब कि हर एक नोड के कितने चिल्ड्रन है, और दूसरा हमारे पास क्या है D, दैट इज डेप्थ। तो डेप्थ का फंडा यहाँ पे क्या है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो डेप्थ किस लेवल पे कितनी है, 0, देन हमारे पास 1, क्योंकि हमने एक एज को ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर हमें बी पे पहुंचना है, डी पे पहुंचना है, तो 2 एजेस को ट्रेवल करना पड़ेगा। तो डेप्थ इस तरीके से आपकी बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे ब्रांचिंग फैक्टर का मतलब है कि एक नोड के कितने चिल्ड्रन पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड द ब्रांचिंग फैक्टर। तो जनरली जैसे बाइनरी ट्री में 2 चिल्ड्रन पॉसिबल है, टर्नरी में 3 पॉसिबल है, यहाँ पे कितने भी पॉसिबल हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो बनती है ऑर्डर ऑफ b की पावर d। तो यहाँ पे लेट्स से अगर हमें g को सर्च करना है या किसी भी एलिमेंट को सर्च करना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, अगर हम फिक्स कर दें कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन हर एक के 2 है, तो हमारे पास ब्रांचिंग फैक्टर कितना हो गया, 2, मतलब 2 से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं है। और डेप्थ कितनी है इसकी, 2, तो यानी कितना हो गया, 2 रेज़ टू पावर 2, दैट इज 4। तो मतलब 4 सर्चेस के अंदर, 4 सर्चेस के अंदर ये हमें क्या पहुंचा देगा, ये हमें गोल स्टेट के अंदर पहुंचा सकता है। लेकिन ये तभी अगर जो हर एक एज की कॉस्ट जो है अगर हम सिमिलर लेके चलते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर द BFS एंड DFS। लेकिन ये दोनों ही अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक के अंदर आते हैं और इनके अंदर सिर्फ प्रेजेंट नॉलेज के ऊपर काम करते हैं। इनको ह्यूरिस्टिक या आप कह सकते हो कि एस्टिमेशन वैल्यू के ऊपर काम ये नहीं करते। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्सप्लेनेशन। आज Okay, thank you very much. Now we will stop here. I have taken your attendance. Thank you.